Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 24 for that topic digestion and absorption. We have been learning regarding the physiology of digestion. Earlier, you have seen the physiology of digestion there that starts what happens in the mouth cavity. Food get mixed with the saliva juice. Some of the enzyme like that, our salivary amylase may start the digestion of the carbohydrate. Then mastication occurs in the oral cavity. Food is passed through the esophagus into the stomach. And what happens in the stomach, that also we have studied in the earlier video. Now the partly digested food from stomach called as chyme has to be pushed further for further process of digestion, and that will enter where? Into the first proximal part of the small intestine. And what is the name of that small intestinal part? Duodenum. If you will remember this, or if you are knowing this figure properly, then this is the stomach, This part is the stomach. Okay. The upper tube is the esophagus. Now from stomach, the next portion is small intestine. और उसका ये जो पहला पार्ट है उसका क्या नाम दिया है? This is known as duodenum. This is duodenum, Okay. So in duodenum the food will pass. हमें मालूम है यहाँ पे एक sphincter है. What is the name of that sphincter? Ring of muscles. What is the name of that? They got the pyloric sphincter. तो वो ओपन होने लगेगा. And by the peristaltic action of the stomach wall, the partly digested food will be pushed forward into the duodenum. और वो धीरे 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 duodenum में आते रहेगा. उसको क्या नाम दिया है? chyme. Okay. And now the further process of digestion will be continued in the duodenum. अब देखो क्या हुआ है. ये जो chyme है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि HCl था ऑलमोस्ट 1.8 pH का. बाद में वहां पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो था पेप्सिनोजिन यानी पेप्सिन, that has acted on the proteins and converted that proteins into the partly digested structure. What is that? That chemical substance are proteoses and peptones. और कुछ undigested proteins भी हो सकते हैं. और सैलरी एमिलेज ने जो कुछ एक्शन चालू किया है कार्बोहाइड्रेट से, उससे माल्टोज शुगर भी उसमें हो सकती है, या ग्लूकोज हो सकता है, या स्टार्च भी हो सकता है. ओके. अब ये पूरा जो पार्ट है वो पूरा कबीला चाइम दैट इज एंटरिंग इनटू द डिओडिनम. अब डिओडिनम में क्या क्या सोर्सेस है डाइजेशन के लिए, इसकी जानकारी हमें अच्छी तरह से होना चाहिए. तो हमें मालूम है जब स्ट्रक्चर हम लर्न कर रहे थे, that duodenum is receiving 3 kinds of the juices there. पाचक रस जो है वो 3 टाइप के उसको मिलते हैं. कौन से मिलते हैं? देखो, duodenum receives intestinal juice. This intestinal juice is produced by the intestinal mucosa. वो जो ब्रश बॉर्डर वाले सेल्स है ना कॉलमनर एपिथेलियम के, so they are secreting some of the juice there, intestinal juice, और उसका नाम देते हैं succus entericus. So do remember this name. MCQ के लिए बहुत ही जरूरी है. That contains some enzymes. And succus entericus is the secretion of what? It's the secretion of intestinal mucosa in the duodenum. Okay, समझ में आ रहा है? दूसरा पार्ट क्या है? तो उसमें भी कुछ एंजाइम्स है, वो भी हम देखेंगे कौन से है. दूसरा कौन सा पार्ट है? बाइल जूस. ये जो लीवर में बन चुका है और लीवर से उसको स्टोर किया गया था गॉल ब्लैडर में, isn't it? पित्ताशय. और गॉल ब्लैडर से उसको लेके आए हैं पर्टिकुलरली द कॉमन बाइल डक्ट जिसे कहते हैं, दैट इज कैरिंग दिस बाइल जूस. कहां तक लाते हैं? डिओडेनम तक. ये है वो, ये ऊपर से आ रही है. ओके. एंड नाउ दैट जॉइंस विद द अनदर डक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? दैट इज कॉल्ड द पैंक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द पैंक्रियाज. ये जो डिओडिनम और स्टमक के लूप में है उसे कहते हैं पैंक्रियाज. दैट यू नो. ये स्ट्रक्चर हमने देखा है अर्लियर वीडियोस में, देख लो जरूर. ये पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे. उसके पहले के जो 23 लेक्चर्स हुए हैं जरूर देखो. यू विल कम इन द लिंक.
कंटिन्यूएशन। तो अब क्या होता है देखो, यहाँ पे पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक जूस बनता है that will be carried by the minute ducts there and finally by pancreatic duct। ये pancreatic duct यहाँ पे ज्वाइन होती है किससे, बाइल डक्ट से, एंड दोनों का मिलके क्या हो जाता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये है वो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो ओपन हो रही है कहां पर, डिओडिनम में। ओके, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए, लर्न बाय हार्ट, the sphincter of Oddi is present at the opening of hepatopancreatic duct into duodenum। MCQ वाला पॉइंट है, sphincter of Oddi, okay, that is present at the opening of what, at the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum। कितना इजी जाता है देखो, एक पॉइंट में, और कितने सारे MCQ मिलते हैं हमको यहाँ पे। डीपली स्टडी करो, आई एम नॉट इन हरी एट ऑल, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, और वो भी NCERT बुक के अनुसार, यानी उसके ऊपर ही MCQ आते हैं, हमें मालूम है, लाइन टू लाइन। ओके, तो आप देखो ये जो लाने वाला है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, व्हाट इट इज ब्रिंगिंग, इट इज ब्रिंगिंग बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। सो ये तीनों का मिक्सचर यहाँ पे हो जाता है डिओडिनम में चाइम के साथ। So chyme in the duodenum gets mixed with what? It gets mixed with the intestinal juice, bile juice and pancreatic juice. And that continuous muscular action of that muscular wall of that intestine duodenum helps in the mixing of these juices with that chyme thoroughly, properly। ये पेरिस्टाल्टिस तो मस्कुलर एक्शन वहां पे चालू ही है, बिकॉज ऑफ दैट दिस मिक्सिंग विल बी टेकिंग प्लेस देयर। चाइम की मिक्सिंग हो जाएगी, किससे हो जाएगी, विद दैट पर्टिकुलर 3 काइंड्स ऑफ द जूसेस। देखो अब हर एक जूस में क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। पाइनएप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, क्या है, स्वीट लाइम है, ये पाचक रस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो इंटेस्टिनल जूस, एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस लाइक माल्टेज। माल्टोज नाम का जो डाइसैकेराइड शुगर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसे डाइसैकेराइडेज भी कहते हैं। ऑल्सो इट कंटेन्स न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ऑल्सो इट कंटेन्स डाइपेप्टाइडेज, जो अभी धीरे धीरे डाइपेप्टाइड बनने वाले हैं डाइजेशन में, डिओडेनम में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइपेप्टाइडेज, ये प्रोटीओलिटिक एंजाइम है। लाइपेजेज दैट कैरी आउट द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स। ओके, तो ये कंटेंट, ये सामग्री किसमें है, इंटेस्टिनल जूस में। देन बाइल जूस हैज नो एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल जूस जो आ रहा है लीवर से, उसमें एंजाइम नहीं है। Which of the following is a correct statement? Which of the following is an incorrect statement? उसमें एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, bile juice has no enzymes। Okay, then it contains bile pigments like bilirubin and biliverdin। उसमें bile pigments है bilirubin and biliverdin नाम के। Also bile salts है, cholesterol and phospholipids। उसमें bile salts भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, फॉस्फोलिपिड्स भी है। ओके, ये बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन का इंटरेस्टिंग काम आपको बताता हूं। ये है वो येलोइश और गोल्डन येलोइश पिगमेंट्स। ओके, ये बिना काम के, इनका कुछ काम नहीं है वहां पे। सो दैट रिमेन मिक्स विद द फूड, फूड डाइजेशन पूरा हो जाएगा डिओडिनम में, जेजुनम में, इलियम में, डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब किया जाएगा। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन को नहीं एब्सॉर्ब किया जाएगा, वो रहेगा अनडाइजेस्टेड फूड के साथ। अनडाइजेस्टेड फूड कौन सा है, पर्टिकुलरली दैट स्टूल, जो जिसको बाहर फेंकना है। एंड दैट्स व्हाई द अनडाइजेस्टेड फूड और द स्टूल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज गेटिंग दैट येलो कलर और गोल्डन येलो कलर that may turn later on brown or even black after few days। Okay, so that stool color is given by whom? By
दिस पर्टिकुलर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये ध्यान में रखो, अगर ये नहीं होते तो स्टूल का कलर व्हाइटिश या ग्रेइश हो जाता। ओके, दैट वुड बी व्हाइट और ग्रे। तो पर्टिकुलरली ये ध्यान में रखो, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का एक इंटरेस्टिंग फंक्शन, ये कलरिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं। जलेबी का रंग कैसा होता है वैसा, isn't it? ये कलरिंग एजेंट है हमारे स्टूल के लिए। स्टूल का मतलब बैठने का नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड, लकड़ी का फर्नीचर वाला नहीं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे कहते हैं स्टूल। ओके, तो चलो आगे। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या है देखो। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिनोजीन, कीमोट्रिप्सिनोजीन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, जे प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है, जो प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है और वो इनएक्टिव है। कौन से? ट्रिप्सिनोजीन, कीमोट्रिप्सिनोजीन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। और स्टार्च का डाइजेशन करने वाला अमाइलेज भी है वहां पे, लाइपेज भी है फैट वाला डाइजेशन करने के लिए, और न्यूक्लियेजेस। ओके, सो ऑल दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। अब बहुत सारी सामग्री यहाँ पे आ गई है, और बाइल सॉल्ट जो अल्कलाइन है उसका पीएच जो बनाते हैं इंटेस्टाइन में वो 7.8 पीएच बना लेते हैं। देखो, एसिडिक पीएच को पहले न्यूट्रलाइज करना है और बाद में अल्कलाइन मीडियम वहां पे प्रस्थापित करना है, बिकॉज ऑल इंटेस्टिनल एंजाइम्स which are present there will act only and only in the alkaline medium. तो उसके लिए बाइल सॉल्ट्स बहुत ही जरूरी है। तो हमें आज के इस लेक्चर से क्या लेना है दोस्तों, ये पूरा लर्न बाय हार्ट वाला पार्ट है। द कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस कंटेन्स, करेक्ट हमको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए उसको, लर्न बाय हार्ट। कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स हमें मालूम होना चाहिए, इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स हमें मालूम होना चाहिए। सो जस्ट लर्न इट बाय हार्ट। अब इनके एक्शन कैसे होते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टूड दिस। सो प्लीज कीप वॉचिंग all my videos, that will help you sure. We shall meet in the next lecture. Till then, bye, take care.